morning students, how are you? Today we are starting our ongoing content that is related to the challenges and the restoration of the Congress system. Means कि whenever first elections was held in 1952 and before that whenever the interim government was formulated by the cabinet mission in 1946 to till the fourth election of parliament, that is known as the general election in 1967. So till the Congress have faced many kind of challenges to survive their self, because previous elections which was there in 1952, 1957 or 1962, they are handled by the very easily by the Congress governments, because on that time there is a single political party which is dominant on entire the nation. But after some times, whenever the time is going on, that is the party was divided into different part and create a new political party. So at that time it is a very challengeable for the Congress to maintain their sovereignty, maintain their power in the political era. So Congress faced many kind of challenges to maintain their position, to maintain their superiority, or to won the election in 1967's fourth general election. Because before sometimes two prime ministers sudden death have impressed the different positions, and after the new prime minister Mrs. Indira Gandhi was selected as a prime minister, and on that time after some times की fourth elections complete होने थे, तो वो situation एक ऐसी थी हमारे कंट्री में जो बहुत उठा पटक वाली थी, and there was a different reasons. Our economic condition was not so good because the attack by the Pakistan and China, pressure by the US government on the currency level. So कि बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे जो इंदिरा गांधी को फेस करने पड़े थे. तो एक अस्तित्व पर एक संकट आ गया था कि कांग्रेस का अस्तित्व अब रहेगा या नहीं रहेगा. हालांकि फोर्थ इलेक्शन में कांग्रेस जीत तो गई, बट नॉट टू मच मेजॉरिटी. बहुत ज्यादा मेजॉरिटी से नहीं जीती जितनी 1952 में. तो ऐसे लगा था कि सारे वोट कांग्रेस को गए. 57 वाले इलेक्शन में लगा कि सारे वोट कांग्रेस को गए, लेकिन जो 67 वाला इलेक्शन था वो ऐसे लगा कांग्रेस अब धीरे धीरे टूटती जा रही है, बिखरती जा रही है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज में. वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज अब कांग्रेस को पछाड़ने में लगी है ड्यू टू द मेक अ ग्रेट कोलिशन, मेक अ ग्रेट गठबंधन. कुछ ऐसी फूड्स पॉलिटिकली फूड जिसको हम बोलते हैं राजनीतिक डिसइंटीग्रेशन, खुद कांग्रेस में भी हो गया था, और उसी की वजह से नई नई पॉलिटिकल पार्टीज बनने लग गई. तो ऐसे में जो पॉलिटिकल पार्टी जो नई बनी है उनको कांग्रेस को पछाड़ने का एक सबसे बढ़िया चांस मिल गया था कि हम अपना एक ग्रुप बनाएं और कांग्रेस को पीछे छोड़ें. ऐसे ही कुछ नॉन कांग्रेसियन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज कंटेंट, दैट इज अ चैलेंज एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम. तो इस सिचुएशंस में जो कांग्रेस है उसने अपने आप को बहुत संभाल के रखा, लेकिन बहुत सारी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज आ गई, तो उसमें अपने आप को हैंडल कर पाना कांग्रेस के लिए अब उतना पॉसिबल नहीं था. ओके, सो क्या प्रॉब्लम आई थी कि पार्टीज अपोज द कांग्रेस रियलाइज दैट द डिवीजन ऑफ देयर वोट्स केप्ट देयर कांग्रेस इन पावर. सो दैट्स अ पार्टी क्रिटिकली डिफरेंट एंड दिस applied the government and the ideology got together to form anti-Congress front in the some state of enter to the electoral adjustment. देखिए जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी, क्लियर, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, मेक द कोलिशन, कॉलिशंस बनाने शुरू कर दिए. सो व्हाट वाज द मोटिव, उनका क्या मोटिव था, टू डिफीट द कांग्रेस को डिफीट करना. क्लियर. तो कुछ एंटी
इस तरीके से क्या बन गए, एंटी कांग्रेस ग्रुप, एंटी कांग्रेस ग्रुप्स, क्लियर। और इन सब का एक ही मोटिव था कि टू डिफीट द कांग्रेस, क्लियर। So some state entered into the election adjustment for sharing seat in others. So they felt the experience of Indira Gandhi and the internal factionism within the Congress provided them an opportunity to prove the Congress. यानी कि उनको क्या लगा था कि कांग्रेस में क्या हो गया है, इंटरनल डाइवर्जेंट हो गया है, आंतरिक फूट हो गई है जिसका फायदा उन्हें मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा the Congress provided them to the opportunity to topple the Congress. The socialist leader Ram Manohar Lohia, Ram Manohar Lohia, ये कौन है, सोशलिस्ट लीडर, समाजवादी नेता जो कभी कांग्रेस में थे। देखिए इनकी पूरी बायोग्राफी दी हुई है। Socialist leader and the thinker, freedom fighter and the among founder of the Congress Socialist Party. ये क्या है, फाउंडर है, ओके। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लिए। And after the split of the present party, the leader of the Socialist Party and the Sanyukt Socialist Party member Lok Sabha in 1963. Clear? And apart this, founder editor of the Mankind and Jan known the original contribution non-European Socialist Party. तो इनकी बायोग्राफी है जो आप देख लीजिए। ये वाला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करें कि राम मनोहर लोहिया ने क्या कहा। तो हमारे पैराग्राफ में वापस चलते हैं। गिव टू द स्ट्रेटेजी ऑफ द नेम नॉन कांग्रेसियन, नॉन कांग्रेसियन यानी कि गैर कांग्रेसी वर्ड किसने दिया है, राम मनोहर लोहिया ने। ही ऑल्सो प्रोड्यूस द थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट द डिफेंस कांग्रेस रूल वाज द अनडेमोक्रेटिक एंड अपोज द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। इन्होंने क्या लॉजिक दिया कि क्यों हम अपोज कर रहे हैं, क्या कहा उन्होंने कि कांग्रेस रूल अनडेमोक्रेटिक है। इन्होंने क्या कहा है, देखिए कांग्रेस रूल इज अनडेमोक्रेटिक, यानी इन्होंने आलोचना करनी शुरू कर दी है कांग्रेस की कि कांग्रेस अच्छी नहीं है, अनडेमोक्रेटिक है। एंड अपोज द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, अपोज द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, वो ऑर्डिनरी पीपल के इंटरेस्ट को अपोज कर रहे हैं, यानी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। सो कमिंग टूगेदर, तो हम एक साथ आ जाए, नॉन कांग्रेस पार्टी नेसेसरी टू रिक्लेमिंग द डेमोक्रेसी। और इस तरीके से जो नॉन कांग्रेस ग्रुप है वो प्रिपेयर हुआ। तो ये दो लॉजिक दिए थे किसने, राम मनोहर लोहिया। कौन थे राम मनोहर लोहिया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो कांग्रेस से ही अलग होकर बनी थी। आपने सोशलिस्ट पार्टी वाला पॉलिटिकल पार्टीज वाला जो चैप्टर देखा ना सेकंड, उसमें हमने ये चीज देखी थी, ओके। अब हम बात करते हैं इलेक्टोरल वर्डिक्ट। एक और पर्सन दिए हुए हैं, दैट इज द नटरंजन एनोडुअल, चीफ मिनिस्टर है मद्रास के, तमिलनाडु के, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिए, जो चीजें आपको इसमें ग्लॉसरी में एज अ बॉक्स दी होंगी। यस, बात करते हैं क्या जनादेश आया था, इलेक्टोरल वर्डिक्ट यानी क्या रिजल्ट आया था चुनाव का। इलेक्टोरल वर्डिक्ट, इलेक्टोरल वर्डिक्ट इन द सेंस चुनाव का जनादेश। जनादेश बोले तो एक तरीके से चुनाव का क्या रिजल्ट आया है। तो हम बात कर रहे हैं ये हमारे 1967 वाले इलेक्शन के। तो इलेक्शन कब हुए थे, वॉज हेल्ड, फोर्थ इलेक्शन 1967। ये 1967 वाले इलेक्शन के लिए बता रहे हैं कि इट वॉज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द heightened popular disconnected and the polarization of political force, that is the fourth general election Lok Sabha and state assemblies 1967, the Congress facing electoral the fast without Nehru। ये कैसा था, पहला बात तो
This election was without the Nehru, यानी इस इलेक्शन में नेहरू नहीं थे क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी कब? 1964 में। 1964 में उनकी डेथ हो गई थी। तो जो इसका रिजल्ट आया था, ज्वाइन द कांग्रेस बोथ ऑफ नेशनल एंड द स्टेट लेवल्स पर, बट मेनी कंटेम्परेरी पॉलिटिकल पार्टी डिस्क्राइब दिस इलेक्शन एज द पॉलिटिकल अर्थक्वेक। इस इलेक्शन को किस नाम से जाना गया है? दैट इज द पॉलिटिकल अर्थक्वेक। राजनीतिक भूकंप कहा गया है इस वाले इलेक्शन को, क्योंकि बहुत ज्यादा उठा पटक मची थी इसमें। क्यों कहा गया? देखिए, कांग्रेस डिड गेट अ मेजॉरिटी इन लोकसभा बट विद द लोएस्ट टैली सीट ऑफ शेयर वोट इन सिंस 1952। तो इसको क्यों कहा गया है? इसके पीछे रीजन है। सबसे पहले अगर हम बात करें पॉलिटिकल अर्थक्वेक, कांग्रेस गेट मेजॉरिटी, कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली है बट नॉट सिमिलर एज इलेक्शन ऑफ 1952, यानी उतनी मेजॉरिटी नहीं मिली जितनी कि उसको 1952 के इलेक्शन में मिली है। हाफ ऑफ द मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी कैबिनेट वर डिफीटेड, हाफ ऑफ द कांग्रेस मिनिस्टर्स वर डिफीटेड, यानी आधे से ज्यादा मंत्रियों की तो क्या हो गई थी? हार हो गई थी। इसके अलावा जो भी पॉलिटिकल कैंडिडेट हु लॉस्ट देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी इंक्लूड द पॉलिटिकल पर्सन दोज हु लॉस्ट देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंक्लूडेड के कामराज इन तमिलनाडु, यानी कि कुछ पर्सन जो बहुत ज्यादा ताकतवर थे। सबसे पहले के कामराज कहां से थे? ये तमिलनाडु में, वो हार गए। सेकंड पर्सन, ये आपको याद रखने हैं, के कामराज। इसके अलावा एस के पाटिल इन महाराष्ट्र, एस के पाटिल फ्रॉम महाराष्ट्र, यानी जो बहुत कद्दावर नेता थे, कद्दावर नेता से बहुत ज्यादा पावरफुल थे। और थर्ड अतुल्य घोष, अतुल्य घोष वेस्ट बंगाल। और एक चौथे पर्सन और है जिनका नाम है के बी सहाय, बिहार, के बी सहाय बिहार। यानी कि ये ऐसे नेता थे डोमिनेंट जिनकी बहुत ज्यादा पावर थी और ये सारे के सारे हार गए। इसीलिए 1967 के 4th जनरल इलेक्शन को क्या नाम दिया है? पॉलिटिकल अर्थक्वेक। ओके, ये आप याद रखेंगे। साइड में जो ग्लॉसरीज हैं आप उनको भी पढ़ते रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और ड्रामेटिक नेचर हुआ था कि कांग्रेस की जो पार्टी ने मेजॉरिटी को तो लॉस किया था 7 स्टेट में। मैं यहां लिख देती हूँ, कांग्रेस लॉस मेजॉरिटी इन 7 स्टेट्स, यानी कि 7 स्टेट्स पे तो उसको मेजॉरिटी नहीं मिली। इसके साथ साथ 2 स्टेट में क्या हुआ था? डिफेक्शन प्रिवेंटेड हो गया। 2 स्टेट्स हैव डिफेक्शन, डिफेक्शन मतलब दल बदल, यानी कि कुछ जो नेता जीते थे उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर दी। तो यानी वो वहां पर हार गई। तो 7 + 9, 7 + 2 = 9, यानी 9 ऐसे एरियाज थे जहां से कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी, यानी वो हार गई। 9 स्टेट वर द कांग्रेस लॉस्ट पावर स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। और ये नाम दिए हुए हैं, देखिए, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरला। ठीक है, तो ये रीजन था इस वाले इलेक्शन को पॉलिटिकल अर्थक्वेक क्यों कहा गया है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि 7 स्टेट्स तो ऐसे थे जहां पर क्या बोलते हैं, उसे बिल्कुल मेजोरिटी नहीं मिली। 2 स्टेट्स ऐसे थे जो जीती हुई थी तो उन्होंने अपना पॉलिटिकल दल ही चेंज कर दिया। इसको कहते हैं डिफेक्शन। ठीक है, एंटी डिफेक्शन एक्ट आपने पढ़ा होगा ना 1985 में। तो वही है ये
और उसकी वजह से लोगों ने जब सीट चेंज कर ली तो 2 सीट का वहां पर नुकसान हो गया। तो टोटल कितनी सीट का नुकसान हो गया? 9। अब ऐसे में क्या हुआ कि मद्रास स्टेट हैव अ DMK। तभी मद्रास में एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी आई, मद्रास DMK, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये इसका पूरा नाम है इस पॉलिटिकल पार्टी का, जो कि कहाँ से बिलोंग करती है? मद्रास से। क्लियर? सो DMK इसका फुल फॉर्म दिया हुआ, देखिए आपकी बुक में भी दिया हुआ, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। इसको जगह हम बोला वैसे, बट हम कड़गम बोलते हैं। न्यूज में भी इसी नाम से बुलाया जाता है इसको। केम टू पावर द सिक्योरिंग क्लियर मेजॉरिटी, द DMK वॉन पावर हैविंग लेड टू द मैसिव एंटी हिंदी एजुकेशन स्टूडेंट सेंटर ऑफ द इम्पोजिशन टू हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। इस पार्टी ने अपोज किया था, अपोज हिंदी लैंग्वेज को अपोज किया था, जिसको किसने इम्पोज किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। क्लियर? सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्पोज किया था हिंदी को, उसने अपोज किया था कि नहीं, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। This was the first time any non-Congress party has secured a majority in any own state. So in the other 8 states, coalition government consisting the different non-Congress party were formed. यानी 7 में से ये एक मद्रास है, यहाँ तो क्या हो गई? क्लियर मेजॉरिटी किसकी? DMK की, बाय DMK। यानी जो 9 स्टेट हमने बताए थे उसमें मद्रास भी एक था, तो वहां पर तो क्या हुआ, एक जो DMK है उसने क्लियर मेजॉरिटी ले ली, क्योंकि उसने बहुत बड़ा प्रॉब्लम रेज किया था कि हिंदी को आपने जो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया है उसको हटाओ, इंग्लिश ही होनी चाहिए। आपने 10th क्लास में भी देखा होगा ये कि, और फिर इंग्लिश को भी एक एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे यहाँ रिकॉग्नाइज किया गया। और बाकी जो 7 स्टेट थे वहां पर कॉलिशन गवर्नमेंट बनी थी, यानी अदर 7 स्टेट्स कॉलिशन गवर्नमेंट। तो इस तरीके से वहां पर कॉलिशन गवर्नमेंट बनाई गई। सो अ पॉपुलर सेइंग वाज दैट कुड ट्रेन, a popular saying that one could take a train from Delhi to Howrah to not pass through a single Congress ruled state। यानी एक कहावत कर गई कि अगर आपको दिल्ली से और हावड़ा जाना है तो ऐसे स्टेशन से होकर जाएगी वो ट्रेन जो नॉन कांग्रेसी स्टेशन होंगे। तो एक तरीके से उस टाइम उसको अपोज किया गया। सो इट वाज अ स्ट्रेंज फीलिंग दोज हु वर यूज्ड टू द सीइंग कांग्रेस इन पावर, सो वाज द डोमिनेशन ऑफ द कांग्रेस ओवर। अब देखिए इसमें हमने क्या क्या क्वेश्चन देखे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल अर्थक्वेक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से इलेक्शन को पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहा जाता है? 1967 फोर्थ इलेक्शन। ठीक है, क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इसमें कांग्रेस को उतनी मेजोरिटी नहीं मिली। अर्थक्वेक को क्यों कहा गया इसको? यानी जैसे अर्थक्वेक आता है ना, बहुत उठापटक मचा देता है, बहुत नुकसान कर देता है, यानी हमारी जो सेट चीजें होती हैं हम उसमें तोड़ फोड़ कर देता है। तो जस्ट लाइक दिस, कांग्रेस जो एक सेट था उसमें बहुत ज्यादा तोड़फोड़ मचा दी थी। क्या कि उसको उतनी मेजोरिटी नहीं मिली। जितने मिनिस्टर्स थे उसमें से हाफ मिनिस्टर तो हार ही गए थे, है ना। इसके अलावा कुछ ऐसे मिनिस्टर्स, ये पूछा जा सकता है आपसे बेटा कि आप कौन कौन से मिनिस्टर जो हार गए थे, क्योंकि उस टाइम कांग्रेस के बहुत पावरफुल नेता थे, कद्दावर नेता थे, रिकॉग्नाइज्ड पर्संस थे। ठीक है, तो ये सारे के कामराज वो पर्सन है जिन्होंने शास्त्री जी के लिए रिकमेंड किया था कि इनको प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए, वही पर्सन है के कामराज, उनको याद रखिए। तो यहाँ से ये लोग हार गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे प्रोविंसेस से भी कुछ नई पॉलिटिकल पार्टीज निकल के आई हैं, जैसे मद्रास से DMK, है ना। तो 7 स्टेट में तो गवर्नमेंट को मेजोरिटी नहीं मिली, वो हार गई थी, लेकिन 2 स्टेट्स में डिफेक्शन की वजह से उनको सीट को लॉस करना पड़ा। इस तरीके से टोटल 9 स्टेट हो गए। तो इस तरीके से आपको ये चीज देखनी है। अब फैशन आ गया कॉलिशन को। अब क्या फैशन है कॉलिशन को, वो हम देखते हैं। आप लोग जानते हैं कॉलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, यानी मिली जुली सरकार, गठबंधन की सरकार। जब किसी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती तो हम कुछ
लोगों के साथ अपनी एक मिक्स पार्टी बना देते हैं, हम कहते हैं कोalition गवर्नमेंट। तो अब देखते हैं हम क्या बात करते हैं कोalition। गठबंधन, क्लियर? क्या गठबंधन था देखिए, हम बात करते हैं 67 के इलेक्शन में। 1967 का इलेक्शन जो था एक ऐसा फिनोमेना लेके आया जिसे कोalition का जन्म हुआ। सिंस दिस पार्टी गेट मेजोरिटी, वेरियस नॉन कांग्रेस पार्टी कम्स टुगेदर टू फॉर्म जॉइन द लेजिस्लेटिव पार्टीज कॉल्ड संयुक्त विधायक दल। संयुक्त विधायक दल, यानी कि वो विधायक जो किसी और पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, कांग्रेस से नहीं है, अब उन्होंने अपने आप को संयुक्त कर लिया है, जोड़ लिया है। ओके, संयुक्त विधायक दल that supported to the non-Congress government, that is why the government came to be described as the SVD, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा है, SVD, इसको शॉर्ट में कहा गया है। ओके, so in the most of these cases the coalition party are ideologically incoherent to SVD government in Bihar. Forward intents include the two socialist party SSP and the PSP along with the CPI, यानी कि अब देखिए बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज बन रही है लाइक SSP, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, अगर हम बात करें PSP, कहाँ पर बनी है दोनों, included two socialist party SSP and the PSP along with the CPI on the left or Janasangh on the right. In Punjab called the Popular United Front and comprise the two rival Akali parties at the time. So sent group the master groups with the both communist party CPI और CPIM SSP। देखिए ये वाला जो coalition है वो हम एक coalitions को बनाकर देखेंगे कैसे, ये अभी आपके एंड में भी आएगा कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको प्रिपेयर किया है। यानी कि जैसे सीपीआई जो है एसएसपी और पीएसपी के साथ मिल गई। तो ये कोalition हो रहा है इस तरीके से, एसएसपी एंड द पीएसपी अलॉन्ग विद द सीपीआई ऑन द लेफ्ट एंड जनसंघ ऑन द राइट। ठीक है, जनसंघ राइट वालों के साथ मिली। इन पंजाब और कॉल्ड पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट एंड कंप्राइज टू राइवल अकाली पार्टीज। तो कुल मिलाकर इन्होंने अपने अपने कोalitions बनाने शुरू कर दिए थे। ओके, तो एक और चीज हम बात करते हैं डिफेक्शन। डिफेक्शन क्या था कि अनादर, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है डिफेक्शन का भी, मैं आपको इसका थोड़ा सा समझाने के लिखने वाला ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं आपको बता दूं 1967 के में एक केस हुआ था जब इलेक्शन हुए थे कि कुछ पर्सन्स थे। एक पर्सन था जिसका नाम था गयाराम, और गयाराम ने क्या करा, सबसे ज्यादा बार पॉलिटिकल पार्टी चेंज करी थी विद इन 15 दिन, 15 डेज में। स्टोरी भी दी हुई है, स्टोरी ऑफ आयाराम एंड गयाराम। तो यानी कि गयाराम जो था पहले कांग्रेस में था, कांग्रेस को छोड़ करके किसी और पॉलिटिकल पार्टी में चला गया, फिर वापस वहां से छोड़ करके वापस कांग्रेस में आ गया, फिर किसी और में चला गया। तो इस तरीके से ये स्टोरी जो दी हुई है आयाराम और गयाराम। क्या है ये आयाराम गयाराम? ये इलेक्शन हुआ था 1967 में। तो उस टाइम ये डिफेक्शन का सीन देखने को मिला था, यानी डिफेक्शन मतलब दल बदलू। डिफेक्शन का मीन क्या होता है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीव्स द पार्टी ऑन हु सिंबल ही और शी इलेक्टेड जॉइन अदर पार्टी। यानी कि डिफेक्शन का मीनिंग दिया हुआ, आपको क्वेश्चन लिखना होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफेक्शन। तो इसको हम थोड़ा सा आपको लिख के बता देते हैं क्या होता है। मीन कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीव, इलेक्टेड representative leave the party, अपनी वो पॉलिटिकल पार्टी को तो क्या कर देते हैं, लीव कर देते हैं,
whose symbol was elected, whose symbol was elected, यानी कि जिसके थ्रू उन्होंने जीत हासिल की है, and join other party, and join other party, उसको कहते हैं एंटी डिफेक्शन, यानी कि पार्टी बदलना। सो 1967 के जनरल इलेक्शन में कांग्रेस जो लेजिस्लेचर थे प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल टू इंस्टॉलिंग नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन द 3 स्टेट हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड यूपी। द contestant realignment and the shifting political loyalties to the period give right to expression, that is the आयाराम और गयाराम। जैसे एक स्टोरी मैंने आपको बताई थी, एक पर्सन है आयाराम गयाराम से रिलेटेड, आप पढ़ लीजिए इस स्टोरी को। 1967 का है, हरियाणा का गयालाल एमएलए है। He changed party thrice in a forefront from the Congress United Front back to the Congress and within the आर यूनाइटेड फ्रंट अगेन, यानी कि पहले कांग्रेस में था फिर यूनाइटेड फ्रंट में चला गया। इस तरीके से इन्होंने बहुत बार पॉलिटिकल पार्टी को चेंज किया है। तो उसी के बेसिस पर एक ये स्लोगन तैयार किया गया था, दैट इज द आयाराम एंड गयाराम। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस। सो किस तरीके से कांग्रेस में डिवीजन हुआ है, यानी ये भी 1967 के इलेक्शंस में ही हुआ है कि जो कांग्रेस थी वो पोजीशन पे थी बट उतना मेजोरिटी नहीं मिली, बहुत सारी स्टेट्स में इस पार्टी को अपनी सीट लॉस करनी पड़ी थी। एंड दिस इज द कि कांग्रेस को इजीली हम डिफीट कर सकते हैं, सो दे हैव क्रिएट टू द ग्रुप्स। एंड मेजर जो नॉन कांग्रेसेस थी वो बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाई, तो कुछ स्टेट्स में तो प्रेसिडेंट रूल को फॉलो करना पड़ा, प्रेसिडेंट रूल इन सम स्टेट्स। ओके, एक पर्सन दिए हुए के कामराज, जो मैंने आपको बताए थे के कामराज, इनकी कुछ अचीवमेंट्स हैं वो आप देख लीजिए ग्लॉसरी में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये है मद्रास के सीएम, मद्रास सीएम, उस टाइम वहाँ के क्या रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके अलावा मिड डे मील को जो शुरू किया है, मिड डे मील वॉज स्टार्टेड, इन्होंने क्या शुरू करवाया है, मिड डे मील शुरू कराया ताकि एजुकेशन के लिए बच्चे स्कूल आ सके। इसके अलावा ये रखा है इन्होंने 1963 में प्रपोजल, ये भी आपको याद रखना है 1963 में। और इसके अलावा एक प्रपोजल भी दिया है कि कांग्रेस के लीडर्स को रिजाइन कर देना चाहिए ताकि यूथ जो पर्सन्स हैं वो पार्टी को हैंडल कर सकते हैं, उसको कहते हैं कामराज प्रपोजल, कामराज प्रपोजल टू रिजाइन द लीडर फॉर यूथ। ठीक है, तो इस तरीके से के कामराज की कुछ अचीवमेंट्स हैं वो हम देख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा कांग्रेस का एक सिंडिकेट दिया हुआ है, यानी इंदिरा के साथ सिंडिकेट। सिंडिकेट क्या होता है, देखिए सिंडिकेट एक ऐसा ग्रुप था जो इंदिरा गांधी के साथ पावरफुल था। क्लियर, सिंडिकेट यानी कि कुछ ऐसा पर्सन, ऐसे ग्रुप जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। ऑफ पावरफुल पर्सन्स, तो कांग्रेस में एक ऐसा ही ग्रुप था जो पावरफुल पर्सन्स का था, जो इंदिरा गांधी के साथ थे। तो इन पर्सन्स ने क्या करा, इन्होंने अपने ग्रुप प्रिपेयर करके कांग्रेस के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंशियल इफेक्ट डालने की कोशिश की। तो सिंडिकेट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल टू इंस्टॉलेशन इंदिरा गांधी एज द प्राइम मिनिस्टर बाय द एंश्योरिंग द इलेक्शन इन द पार्लियामेंट्री पार्टी, यानी कि एक बहुत बढ़िया इन्होंने इफेक्ट डाला कि
कैसे इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो हमसे क्या करेगी, एडवाइस देगी, यानी कि दिस लीडर एक्सपेक्टेड कि इंदिरा गांधी फॉलो देयर एडवाइस। सो ग्रेजुअली इंदिरा गांधी अटेम्प्ट टू द असर्ट द पोजीशन विद इन द गवर्नमेंट एंड द पार्टी। तभी क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने खुद को ही बहुत ज्यादा सॉलिड बना दिया, खुद पावरफुल बन गई। क्लियर? एंड स्लोली एंड केयरफुली दे साइड लाइन बाय द सिंडिकेट, और इस तरीके से उन नेताओं को परे हटना पड़ा। So Indira Gandhi has faced two challenges. She need to build the more independence for the syndicate, and she also need to work towards the ranging around Congress 1967 elections. So मतलब यहाँ पर एक है कि इंदिरा गांधी को कौन कौन से जो challenges है उसको भी फेस करना पड़ा था। ग्लॉसरी में सिंडिकेट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस दिए हुए कि व्हाट इज द सिंडिकेट एंड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। क्लियर? मैं आपको जिससे बता रही हूँ कि कुछ जो लीडर्स हैं उनके बारे में भी आप पढ़ते चलिए, प्लस जो कुछ एक ग्लॉसरी में हमारे पास जो दिया हुआ है इन द सेंस कि आपके पास जो भी बॉक्स में एक इंफॉर्मेशन दी हुई लीडर से रिलेटेड उसको भी आप देखते चलिए। सो ओके स्टूडेंट्स, एज सून एज पॉसिबल योर मिड टर्म एग्जाम विल हेल्ड, so to prepare all the things I will provide a particular syllabus for the exams. So take it carefully and read it carefully, do your homework regularly. So use your 100% time because अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो जितना ज़्यादा हो सके आप समय उसको यूज़ करिए। मुझसे भी ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। जितना आप सेल्फ स्टडी को टाइम देंगे उतना ही आप परफेक्ट बन जाएंगे सब्जेक्ट में, और उतना ही आपको 12th में अच्छा स्कोर करने में हेल्प मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, आप समझदार हैं, बड़े हो गए हैं, अब आप इसको बहुत यूटिलाइज करके चलिए, टाइम को वेस्ट ना करें। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।